बरसना दीजह प्राण अकोर। जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा, सा विद तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। मनोह जे अंधे कूप कहया बिरद ना जाननी। मन अंधे उंदे कबल दिसन खरे रूप। एक कह जानना कहया बुझना, ते नर सुकड़ स्वरूप। एक ना नाद न वेद न गिय रस, रस कस ना जानंत। एक ना सिद्ध ना बुद्ध ना अकल सर, अखर का प्यो ना लहंत। नानक ते नर असल खर, जे बिन गुण गर्भ करंत। नानक ते नर असल खर, जे बिन गुण गर्भ करंत। परम सन्मानयोग चबर छत्र तखत दे मालक वालिए कुल कायनात, धन धन साहब श्री गुरु अर्जन देव, धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जियां दी पावन पवित्र मुबारक गोद अंदर जुड़ बैठे प्यारे सतसंगी जनों, बहुत ही वडभागे हो जो कि साहिबां दी गोद अंदर जुड़ बैठ के अपने जीवन दियां अमोलक घड़ियां नूं सफलियां करन दा यतन कर रहे हो। आप संगतां ने उदम उपराला करके संत बाबा सुखदेव सिंह जी की बरसी नूं मुख रख के परसों रोज़ तो पावन अखंड पाठ साहब जी के पाठ रखे सन। गुरु साहब जी की अपार बख्शिश मेहरामत हुई है, भोग पे ने। उपरंत आप संगतां दीवाना दे अंदर बड़े सोहने तरीके दे नाल सज के बैठे जी। तो मैं बेनती करांगा भैणां नूं, आ छोटे बच्चे जिहड़े बैठे ना प्यारिओ, कथा जिहड़ा है ना बड़े टका दा विषय है। जिहड़े वीर भैणां स्कूलों च पढ़े आ ना, उन्होंने पता होना जदों क्लास दे विच लैसन दिता जाता है ना टीचर वालों, उत्थे शोर शराबा नहीं हुंदा। जे क्लास दे विच शोर शराबा हुंदा है तो कई बार बच्चा जो उत्थे पढ़ाया जाता है, जो उत्थे दस्सिया जाता है, उस तो वांझा रह जाता। गुरुद्वारा साडे वास्ते स्कूल है। इत्थे आके सिख ने गुरु साहब तो सोहनी सिक्ख्या लैके अपने जीवन नूं सोहणिया बनाउणा है। तो आओ गुरु साहब जी के पावन बचनों के नाल सांझ पाउण तो पहला आप संगतां एक बार कहण ते दोवें हथ जोड़ गज के बुलाओ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप संगतां ने अरदास तो उपरंत जो भाई साहब पासों हुक्म सरवण किया है गुरु साहब जी का,
ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸਗਲ ਭੈ ਲਾਥੇ, ਦੁੱਖ ਬਿਨ ਸੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦੁੱਖਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਨਸਾਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਫਸਲ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਦਾ, ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ, ਖੇਤ ਵਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸਵੇਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲੇ ਘੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਕੰਮ ਕਰਕੇ? ਸੁੱਖ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਆਵੇ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਨਲਾਇਕ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ, ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਬਹੁਤ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਬੈਠਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਰਮੀ ਬੜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜਾ ਬਹਿਣਾ ਔਖਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਸ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਉਦਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਦਿਆ? ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪੈਣ ਤੱਕ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁੱਖ ਘਰ 'ਚ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਦੁੱਖ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਦੁੱਖ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆ, ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣਿਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਅੱਛਾ, ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਸਲ ਘੱਟ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਮੱਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਣਾ, ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸਗਲ ਭੈ ਲਾਥੇ, ਦੁੱਖ ਬਿਨ ਸੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਜੇ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਗਏ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੀ ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ, ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਸਮਝੀਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦਾ ਘਰ 'ਚੋਂ ਤੁਰਿਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਖੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਤੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ, ਪੁੱਛਦਾ ਮਿਲ ਆਇਆ? ਅੱਗੋਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਜਾਂ ਉਹ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ ਪਊ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਨਮ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਵਿਛੜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਏ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਤੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ, ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ, ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਪਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਭਲਾ? ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਐਬ ਤਨ ਚਿਕੜੋ ਇਹ ਮਨ ਮੀਂਢਕੋ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਬੰਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਪੱਕੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਭੱਜਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਹੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਚਿੱਕੜ ਤਿਲਕਦਾ, ਗੱਡੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਚਿੱਕੜ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਹੂੰਝ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਨੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸਗਲ ਭੈ ਲਾਥੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਲੱਥ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਭੈ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਿਓ, ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈ ਦੂਰ ਕਰ ਲਏ, ਡਰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੰਦਾ ਡਰੀ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਮੜੀ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 40 ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 10 ਲੱਖ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਖਵਾਉਂਦੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆ। ਨਾ ਉਸ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾ ਪਿਤਾ ਏ ਨਾ ਮਾਤਾ ਏ, ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤਾਈਓ ਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਰੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅਖਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆਉਣੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਊ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ। ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬੱਚਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, 3-4 ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਮਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ, ਅੱਗੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸਾਂ, ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਇਕੱਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਵੇਖ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨਿੱਘਾ। ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਤੂੰ ਬਾਪੂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਕਦੀ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਘਰ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ, ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨੌਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਸ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਝੂਠ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਊਗੀ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰੁੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਝੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤਲਾਕ ਵੀ ਲਊਂ ਤਾਂ ਵਸੂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕੂੰ ਤੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੋ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਪੜੂੰਗਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੀਵਾ ਤੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ, ਪਰ ਵੀਰਵਾਰ ਫਿਰ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੇਰੀ ਮੰਨ ਜਾਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਨਾ ਖਵਾਵਾਂਗੇ।
जे गुरु दी मान के फिर तो ये सियाणे हो जाना, पर बंदा कहता मैनू मूर्ख कौन आखूगा। ਇਹਦਾ मतलब अपने आप ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਅਖਵਾਉਣਾ नहीं ਚਾਹੁੰਦੇ। तो गुरु साहब जी ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸ਼ਰਨ गुरु, प्रभ ਦਾ मतलब ਰੱਬ, परमात्मा, अकाल पुरख। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ गुरु ग्रंथ साहब जी बाणी पढ़ते हैं ना भैणों, ध्यान ਨਾਲ सुनिया जी। गुरबाणी ਦੇ ਵਿੱਚ एक ओंकार ਦੀ ਵਰਤੋਂ 567 ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। गुरु साहब एक बार लफ्ज़ एक ओंकार वरत देंगे, 2 बार वरत देंगे, 4 बार वरत देंगे, 10 बार वरत देंगे, 100 बार वरत देंगे, 200 बार वरत देंगे। अच्छा, गुरु साहब नूं 567 वार एक ओंकार की वरतों क्यों करनी पई भला? ਇਹਦਾ मतलब कि गुरु साहब के सामने किड्डे क मूर्ख लोग होणगे जिन्हां नूं समझाउण वास्ते वार वार एक ओंकार की वरतों करनी पै रही। अच्छा, अज असीं कि गुरु साहब जी के एक ओंकार की फिलोसफी समझ ली। एक ओंकार का मतलब कि बंदिया एक हो जा, एक होने का मतलब कि एक अगे झुक गया अज तो बिना तेरे जीवन के विच होर कोई टेक आसरा ना होवे। क्यों ना टेक आसरा होवे? सब सुख दाता राम है। सुख वास्ते भज्जे फिरदे असीं। अच्छा, बंदा दिन तो रात तक कमाई काहदे वास्ते करदा? सुख वास्ते, सुख वास्ते भज्जा फिरदा। पर गुरु साहब जी कहते आ तेनू सुख की परिभाषा दे के कलामा, सब सुख दाता राम है, दूसर ना है न कोई। गुरु साहब जी कहते इस संसार दे विच, इस पूरे जगत दे विच कोई भी सुखां दा दाता नहीं हैगा। तो सानू पता नहीं कित्थों सुखां दे दाते लभ जाते, असीं पता नहीं कित्थों लभ लियाने जाके कि फलाने थां तो सुख मिलना। फिर भैणां इदां दसणगीਆਂ एक दूजे नूं, असीं उत्थे गए, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨੌ ਸੱਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਸੱਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੌਂ ਬੜੀ ਲੜਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ जादू टूना दसो जिहदे नाल मेरी नौं मेरे नाल ना लड़िया करे। वो कहंदा जरूर। अगों सियाणा सी बंदा, उन्हें ना लाचियां देतियां, अज भी लाचियां तवीज दिते जाते वैसे। वो कहंदे जदों घर च लड़ाई होण लगे तो उस वेले लाची अपने मूँह च पा के चित्थन लग पैणी। जदों लड़ाई होण लग्या करनी उधरों, जदों मूँह च लाची पै जानी, चुप हो जाना, लड़ाई आपे शांत। जदों बंदा अगों जवाब ना दूगा आपे लड़ाई। जे एक बोल पिया दूजा शांत हो जाए। घर इदां थोड़ी चलते हैं कि जे मान लो कि सारे कहण साडी च उधर चलो तो घर तो कभी भी नहीं वसना, उत्थे किते ना किते कंप्रोमाइज़ किया जाता। अज घरां दीयां लड़ाइयां इसे करके आ। हर एक इंसान ये चाहुंदा कि जो मैं कहता बस यही होना चाहिए, पर घर फिर चलते जिथे जे बंदा कहना जानता, जिथे पत्नी नूं पति कोई गल कहिंदा पत्नी मान लैंदी, जे पत्नी कोई गल कहिंदी ते पति नूं भी मननी पैनी आ, फिर घर चलने। तो गुरु साहब जी कहते ने प्रभ की शरण, गुरु की शरण दे विच पैण दे नाल सगल, ਇਹਦਾ मतलब एक दो नहीं आख्या ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ दुख, 4 दुख, 5 दुख, 6 दुख सरीर दे ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ। मालिक जी कहते तेरे जीवन दे विचों सारे दुख जिहड़े ने वो दूर हो जाणगे। सगल भै लाथे। बंदा ते दिन रात डरदा फिरदा, तरबकदा फिरदा, जांदिया जांदिया। अच्छा, डर करके बंदा काम सारे करदा, डर करके दीवे जगाउंदा, डर करके मड़ी ते मत्था टेकदा, डर करके रुखां दीयां परिक्रमा करदियां। सिख ने ते गुरु की परिक्रमा करके गुरु अगे मत्था टेकना सी। इत्थे ते सिख ने गुरु दीयां परिक्रमा करनियां सी। आपां आके मत्था टेक के परिक्रमा नहीं कर, गुरु भी हसदा हो, साडे ते शर्मिंदा हुंदा होगा। मालिक ने कहना आ चंगे नौटंकीबाज, इत्थे आके परिक्रमा करके मत्था टेके उत्थे जाके फिर सिर सुट लिया इन्हां ने। खिद्दो खुंडी आ कि क्या तमाशा बना के रखा। इत्थे आके मालिक नूं भी मत्था टेक गया तो उत्थे जाके होर थां ते सिर झुका। तो साहब जी का जिहड़ा आपां पावन शब्द गुरु नानक देव पातशाह जी का पढ़िया, मालिक जी कहते मनो जे अंधे कूप कहया बिरद न जाननी। गुरु साहब जी कहते जेड़े मन करके अन्ने आ, तुसीं कहंदे ना किसे ते असर नहीं पैंदा, फलाना बंदा ते घंटियां बद्धी गुरुद्वारे जाके बह आउंदा। ਆਪਾਂ कई बार इदा बंदा आसा लाउंदा, पुत्त भी कई बार बापू तो आस ला लैंदा कि बापू सवेरे उठ के गुरुद्वारे जाता है, जाके नितनेम सुनता है, शामां नूं फिर गुरुद्वारे जाता है।
आके घर दे विच इहदे काम बदलण नूं तैयार नहीं है। बच्चा स्कूले जावे मान लो 2 साल 4 साल तो उन्होंने आखे माँ पुत किताब पढ़ के सुना, पुत आ मैनू सवाल हल करके सुना, पुत आखे मम्मी मैनू कुछ पता ही नहीं। तो माँ ने भी कहना पुत फिर तू लैन की जाना स्कूले, इदा ही आखो ना माँ। अच्छा हुण बंदा गुरुद्वारे सवेरे भी आ रहा शाम भी आ रहा पर काम बदलने लई तैयार नहीं हैगा। ਇਹਦਾ मतलब गुरु साहब इहो जे बंदे नूं की कहंदे, कहंदे मन करके अन्ना बंदा। अन्ने बंदे नूं की पता दिन अगर रात आ, अन्ने बंदे नूं थोड़ी पता। दिन रात की जजमेंट तो ही करूँगा कि जिहदे कोल अखां हैगियां, जिहड़ा वेखदा अखां दे नाल, आपां अखां मीटदे फिर नेरा छा जाना। बंदे अन्ने बंदे ने दिन नूं भी रात आखी जाना कि रात आ, उन्होंने की पता सूरज की हुंदा, रात की हुंदी, दिन की हुंदी। उहदे बेचारे दियां अखां ही नहीं हैगियां, उहदे वास्ते तो नेरा ही आ सारा संसार। बंदा भी जदों गुरु कोल आउंदा अन्ना हो के आउंदा, पर गुरु ने इहनूं अखां देणियां सी। मालक जी आवाज़ मार मार के कहंदे आ तैनूं अखां देवां, किहड़ियां? ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। मालक जी कहंदे आ जे अज्ञानता दा हनेरा दूर करना ही ना, आ मैं तैनूं ज्ञान दियां अखां दे के तोरां, आ तैनूं मैं सोहणियां अखां दे के तोरां। पर बंदा एडा वैड़ा जिन्हों गुरु साहब जी कहंदे आ ना कि इहदा हाल एक गधे वर्गा है। वो तुसीं वेख्या होना, गधे दे उत्ते जिन्ना चिर तक वजन ना लद्दिया जाए उन्ना चिर तक वो बड़ियां छड़ियां मारदा। बंदे दा भी इदां दा ही हाल आ, ये भी अपने गुरु कोल आके इधर उधर छड़ियां मारदा रहिंदा। मालक जी कहंदे छड़ियां मारनियां छड्ड, ए हड़ ते हड़, इधर उधर जाना छड्ड दे। तैनूं आ मैं पावन सच्चे शब्द दे लड़ ला के कलां, जदों तू इत्थों बाहर निकलेगा लोग तेरे वाल वेख के तेरे जीवन तो प्रभावित होके ये कहणगे मैनू भी दस अपने गुरु दा वल की, मैनू भी दस किहड़े गुरु दा सिੱਖਿਆ। तू पुछदे रह सिख भाई जोध कोलों। भाई लहणा मंदिर दे उत्ते जांदा है, मातावां दियां जाके भेटां गाउंदे ने, तीर्थां दे उत्ते तुरे फिरदे ने, किहड़े भाई लहणा जी। भाई जोध कोलों बाणी सुन के कहंदे दस हां किहड़ा गुरु आ तेरा, इन्नी मिठी बाणी मिलना चाहना। तो विद्वान लिखते ने अंगद लहने से अंगद, अंगद से अल्लाह कर दिया। बाणी की करामात है जिहड़ी एक आम इंसान नूं रब बना देती। तो गुरु साहब जी इस पावन शब्द के राही आपां जिहड़ा पावन शब्द हुणे आप संगतां ने सरवण किया। मालक जी दे अंदर कहंदे मनो जे अंधे कूप कहया बिरद ना जाननी। कहते जेड़े बंदे मन करके अन्ने होंदे आ, गुरु साहब जी के हज़ारां शब्दों की सार वो बंदे नहीं जानते। गुरु साहब जी हर शब्द के अंदर कमाल का ज्ञान देंदे ने, कमाल की विचार देंदे ने, पर मालक जी कहते मन तो अन्ने होने करके बंदे गुरु के शब्द की सार नहीं जानते। किद्दां नहीं सार जानते? जिद्दां कमल फुल का एक तलाब दे विच कमल का फुल खिलिया है, भौरे नूं उहदी सार का पता, भौरा दूरों उड़ के आया, उहदे चों आके वो मकरंद चूस के लै गया, तो डड्डू उहदी जड़ च बैठा जाला खाई जाता है। दोवें कमल के फुल कोल आ, एक जाला खा रहा, एक उसे कमल दे विचों मिठा सोहना शहद आपां जिहड़ा वरदे आं मिठास कढ के लै गया कमल के फुल विचों। जे तो सिख भौरा बन के आउंदा फिर तो गुरु तो इन्हें मकरंद लिजा के ऐन शांत हो। तुम वेखा भौरा दूरों गूंज पाउंदा आउंदा, पर जदों आके फुल ते बहिंदा शांत हो जाता। आपां कहने ना शांति नहीं मिलती, बंदे च टिका नहीं हैगा। गुरु साहब कहंदा हाले तू शब्द रूपी फुल ते बैठा ही नहीं, शांति कित्थों आ जूगी। इहदा मतलब शांति लैण वास्ते शब्द रूपी फुल दे विच अपने आप नूं बाउणा पैना। तो साहब जी कहते मनो जे अंधे कूप कहया आखण दे नाल बिरद, आप कहने फलाना बंदा नहीं मानता, कई कहया बिरद ना जाननी। कहते जिन्ना मर्जी समझा लो बंदे नूं, आखो ना मन मत आ। गुरु साहब इदां कहते, बंदा कहता मेरी सियाणप कित्थे जाओ। हुण मान लो गगनदीप सिंह मैं थोड़ी अपना इत्थे कुछ कह रहा, तो जो बाणी कह रही कल्ले कल्ले आप शब्द की व्याख्या करना। जाण तो बाद तुसीं ग्रंथी सिंह तो पुछ लो कि वाकई बाणी 'च इवें लिखिया।
जी सच्ची लिखा गुरु साहब जी ने बाणी च इदां। जेड़े जेड़े शब्द की मैं व्याख्या करदा उस शब्द नोट कर लो, बाद च आपे व्याख्या करा लो। यही हो सकता जे मैं अपने कोलों कह के जाऊँगा, हो सकता तुम इत्थे घेर लो कि भाई साहब आ की सुना गए तुम। ये तो कहण बापू जी का ने ना, फिर तो सुनना पैना सन। तो साहब जी कहते मनो जे अंधे कूप कया बिरद न जाननी, मन अंधे ऊंधे कवल, कवल का मतलब हिरदा घर। कहते मन अन्ना होने करके इन्हें अपने हिरदे रूपी भांडा मूधा मारिया होया। तुम वेखो मोहले धार बरसात होवे, मोहले धार बरसात होवे, बंदा इदां करदा। वैसे बाहर एक भांडा रख आया विहड़े विच ते कमरे च बैठा आके अरदासां करदा, धन धन गुरु नानक देव पातशाह, धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी, इस भांडे दे विच पानी नक्को नक भर जे। लागे बच्चा सियाणा वो कहंदा बापू जिन्नियां मर्जी अरदासां करी जा, तैनूं भांडा सीधा करना पैना। ये कौन कह रहे? पर गुरु साहब कह रहे मनो जंदे घूप, मन अंधे ऊंधे कवल, पुट्ठे भांडे। गुरु साहब जी कहते हैं कि तेनों भांडा सीधा करना पैना हिरदे रूपी, फिर गुरु की विचार टिकनी आ। भांडे तो तू मूधे मार के आना गुरु घर, इत्थों तो गुरु ने तेनों तत्त दे के घलना है, विचार दे के घलने। यदा मतलब जे नहीं टिक रहा तू भांडा मूधा मार के आ रहा। बच्चा कहता बापू ये भांडा सीधा कर रहा जाके। गुरु भी इदां ही कहता। मालिक जी कहते तेनों लम्मे लम्मे तीर्थां ते जाके इदां रटन जाके उत्थे कुंभ के मेले ते थोड़ी नहाना पैना, अपने काम सीधे कर ला। तेरे लिए घर ही कुंभ का मुल आ, तेरे वास्ते घर ही गुरुद्वारा। जे तू गुरु की विचार नूं अपने हिरदे दे विच टिका लिया। गुरु साहब जी ने इनू मंदिर भी आख्या, मन मंदिर, मन नूं हरी का मंदिर भी आख्या। ये शरीर इन्हें ही तो सारा कुछ सामने लैके आना। जे ये सोहना बन गया, इनू वेख के लोगों ने तेरे गुरु बारे पूछना कि किहड़े गुरु का सिख है, सानू तो दस जरा। अज बंदा नहीं इदां करदा। जो बच्चे का विआह हुंदा अरदासा करदा, मालिक जी रहिंदे कारज आप विच सहाई हो गए, संपूर्णता दे विच लिआओ। अच्छा, जदों ग्रंथी सिंह पाठ करन तो बाद महाराज का स्वरूप फिर गुरुद्वारा साहब लै आउंदे ने। फिर एक पासे अरदास होई, इहदा मतलब भांडा असीं मूधा मार के अरदासां करवा रहे सां ग्रंथी सिंह कोलों। उस तो बाद च डीजे आउंदा, शराबां चलदियां, जो अत दा लुचपुणा हुंदा, ते अरदास फिर कराई जांदी, मालिक जी नवीं जोड़ी सुभाग जोड़ी नूं खुशियां खेड़े बख्शो। गुरु साहब ने कहना प्यारिया खेत च बीजिया की हो, बीज की आया लोड़ै दाख बजोरियां, किकर बीजै जट हंडै उन कताएं दा, पैंदा लोड़ै पट। गुरु साहब कहते कि देखो कली कली गल का जवाब दिता, ताइयों तो पूरा गुरु आख्यागा कि साडा गुरु पूरा। तू किसी पक्ष तो भी आके गुरु साहब तो पुछ के तो वेख, भावें तेरे जीवन के निजी मसले होण ते भावें संसार दे विच विचरना किवें, वो मसले लैके आ जा। गुरु ने तेनों कली कली गल ते तसल्ली दे के तोरना। तो साहब जी कहते ने लोड़ है दाख बजोरियां, किकर बीजै जट। अच्छा, बीजिया सारा कुछ, जो काम किते विआह दे विच जां उदां बच्चे दे जन्म होया। एक पासे कहना मालिक जी लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे, उत्थे जे शब्द आया। बंदा कहता कि मेरे घर बच्चे का जन्म हो गया, गुरु कोल भी आके कड़ाह प्रसाद की देख करा जाता। फिर जाके शराबां दे दौर भी चलते ने, होर बहुत कुछ करता है। इदां नहीं लगता कि जिद्दां तेरे घर कोई अफलातून जम पिया, सारियां घर जन्म तो बच्चे का हुंदा ही हुंदा। ये तो उदों पता लगना। इनू भी नशा आख्या बाणी ने, इनू नशा गया। आपां एक तो नशा ना बाहरी तौर पर बंदा करदा, सवेरे नशा किया तो शामां नूं उतर गया, जां शामां नूं कीता रात रहा सवेरे उतर गया। ये भी नशा बाणी कहती कई बार 20-25 सालों बाद चूर हुंदा। जदों पोता आके कहता ना बापू मैनू वख कर दे, जिन्ना कि हिस्सा है दे दे मेरा, उदों माँ भी हाल पारिया करती, पुत्त तेनू तो बड़े मैं प्रेम नाल पालिया, मैं तो चाहुंदी सा नौं आऊगी मैनू पक्कियां पक्कियां खवाऊगी, पका के खवाऊगी। उन्हें कहना माँ नौं अगों कहती कि तेरे हत्थ नहीं है, मैं हत्थ अपने ज़्यादा साड़ने, तू अपने हत्थ साड़, इदां हुंदा। ਇਹਦਾ मतलब कि सारा कुछ ये जे सामने आया, ਇਹਦਾ मतलब बीजिया की सी, वेखना पैना ना, फिर सानू पिछे जाना पैना। बीजिया की सी, बीजियां सी किकरां
ते भालदे बजोर इलाके दियां दाखां मिठियां कि मालक जी बीजीए किकरां। वो आंदे घर दे विच ना किसी बंदे ने किकर दा रुख ला लिया ते बाजार दे विच दुकानां ते टोकरे लभदा फिरे। किसी ने पुछया, गवांढी ने घर दे विच बापू दे नाल बच्चा भी गया, पुत्त गया नाल। पुत्त नूं लै गया कि पुत्त आपां टोकरे लैके जाने। पुत्त कहंदा बापू टोकरे काहदे नूं लैके जाने? कहंदा कल नूं फल लगणे आ ते आपां टोकरियां 'च पाउणे। पुत्त सियाणा ही कहंदा बापू फल दा तो पता नहीं, आ सूलां जिहड़ियां हुंदियां ना, तू तो बुड़क बुड़क वजना, तू इन्हां तो फल दी आस करना, बीज के ते किकरां बैठा। अज तुसीं की सोचदे जे कि बच्चियां दा दोष आ? असीं की सोचदे साडे पुत्तरां दा दोष है, साडियां धीआं दा दोष है, जिहड़े गुरबाणी तो कोहां दूर जाके गुरमत दे विहड़े वल नूं, गुरु दी सिੱਖਿਆ नूं अपने जीवन दे विच धारण करन दे लई तैयार नहीं, सिद्धांत तो मनफी हो गए। इहदे विच किते ना किते बहुत वड्डा रोल साडे माता पिता दा भी, माँ प्यो दा रोल। तो साहब जी कहंदे ने इत्थे शब्द दे अंदर, मालिक जी कहंदे माने अंधा है, इहदा मतलब मन नूं बड़ी वड्डी जिम्मेदारी मनदी। आपां जदों शामां नूं सौंने आ ना, सोहला साहब जी की बाणी पढ़ते हैं, आखिरी पंक्ति दे विच गुरु साहब जी ने वेखो मन नूं किड्डे कमाल दा संबोधन किया। रात नूं सौन लग्गिया भी गुरु साहब जी ने मन नूं सुचेत किया है। करो बेनंती सुनो मेरे मीता। इत्थे मित्र किहड़ा, मन नूं मित्र कहा, इहनूं मित्र बना ला। गुरु साहब कहंदे इहनूं अपना मित्र बना ला। अपना मित्र नहीं बनाउणा, इहनूं गुणा दा मित्र बनाउणा, गुणा दा। इत्थे गुरु साहब जी मित्र बना के, करो बेनंती सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला, यहाँ खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला औद कटै, दिन सरैना रे मन। संबोधन हो गया ना इत्थे। मन गुर मिल काज सवारे। जे अपने काज सवारना चाहना, जे अपने काम आपां कहने साडे सारे काज सौर जाण, मालिक जी साडे सारे काज सवार दिओ। गुरु साहब जी कहंदे कि तेरे सारे काज सौर जाणगे। मन गुर मिल, गुरु दे नाल मिल जा। ਇਹਦਾ मतलब फिर उत्थे सवाल आ गया ना, ये जे तो सानू मिलने वास्ते मिली, बंदा फिर क्यों विछड़िया होया? गुरु साहब जी कहते मन नूं संबोधन करके है, मेरे मन गुरु दे नाल मिल जा ते अपने काज सारे सवार ला। हुण जिम्मेदारी तेरी है, तू सवारने आ कि बिगाड़ने आ। जे काज अज साडे विगड़े ने तो इसदा मतलब कि गुरु की सिੱਖਿਆ तो असीं आके हो गए हैं। मन अंधे ऊंधे कवल। मानक जी जिन्हों ने भांडे मूधे मारे हुए हो, इन्ना ये बंदे किद्दां दे दिखदे भला? गुरु साहब जी दसो, इहो जे बंदियां नूं किहो जे वेखदे होणगे लोकां दे सामने, जां घर दे विच रिश्ते आपस दे विच किद्दां दे नज़र आउंदे होणगे? मालिक जी कहंदे दिसन खरे करूप। मालिक जी कहंदे बाहरों बड़ा सवारिया बंदा लिया के ब्यूटी पार्लर दे जांदा, जिन्हें सिरे दा कोर्स कीता हो, जिन्हें PhD की होवे ब्यूटी पार्लर ते, है ना। मान लो जेड़ा बच्चा है, छोटा बच्चा, पत्नी जदों घर दे विच एक धी दी डोली घर दे बच्चों चुप कर, जदों डोली घर दे विच उठनी है ना, कई बार तुसीं वेखो आ बच्चों नूं बाहर लैके जाण, मेरियां भैणां जिहड़े बच्चे ना बाहर लै जाओ, इन्हां बाद दे विच आपां जिहड़ियां भैणां दे बच्चे बाहर लै जाओ, थोड़ा जिहा ना बाहर खड़ा लो जाके, उठो कोई जना इधरों वीर सेवा कर दो, बहु लै जाओ बाहर। तो गुरु साहब जी कहते हैं कि जदों बच्चे घर दे विच एक धी दा विआह रखना, हुण गुण कोई नहीं है उहदे कोल, गुण नहीं कोई हैगा, ते गुरु साहब जी कहते ने उहदा चेहरा जिहड़ा बड़ा सोहना, बाहरों बड़ा सोहना। आपां कई बार इदां करदे, तुसीं वेखो बाहरों बंदा बड़ा सोहना लगदा, बाहरों बड़ी सोहनी शक्ल नज़र आउंदी आ, पर मालिक जी कहते बाहर दा तेरा दिखिया होया किस काम दा? बाहरों सानू तुसीं कई बार वेखो कि जिहड़ा सोना हुंदा ना, सोना वो बाहरों बड़ा सोहना नज़र आउंदा, पर अंदरों डुप्लीकेट हुंदा कई बार। वेखा टका जिहड़ा है ना, कथा दा एक लय हुंदी आ। मैं इसे करके बेनती कर रहा पहलों कि जे बच्चे किते शोर मचाउण ते उन्हां नूं भैणां पहिलां ही उन्होंने बच्चे नूं याद गोदी में बहा के, हाली सच है, हाली सानू गुरुद्वारे बहना तक नहीं आया।
ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਕੱਢਣਾ, ਧਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਟਿਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੂਈ 'ਚ ਧਾਗਾ ਪਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਟਿਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਲੰਮਾ ਸਿਰ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਮਨ ਦੇ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੋਟੀ ਕੰਡੇ ਕੱਚੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਚੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਲੇਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ, ਬੰਨਾ ਪਨੀਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਇੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਅੱਜ ਚੱਲ ਕੇ। ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਧੀਏ ਬਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਟੂਲ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੀਏ। ਏਡੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰ ਆਇਆ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਇੱਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਐਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਟਕਿਆਂ ਛੱਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਹ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਵੇਚਣਾ ਪੈਣਾ ਭਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚੋ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ, ਕੋਠੀ ਵੇਚ ਕੇ, ਗੱਡੀ ਵੇਚ ਕੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗੀ? ਵੇਚਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਮਨ ਵੇਚਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੇਚਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਨਾ ਕੁਛ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਘੱਲਣਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜੇ 15 ਲੱਖ 18 ਲੱਖ ਲਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 3 ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, 2 ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੇਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਮਨ ਵੇਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਮਨ ਵੇਚਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਸ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਮਨ ਅੰਧੇ ਉਂਧੇ ਕਵਲ ਦਿਸਣ ਖਰੇ ਕਰੂਪ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਮੂਧੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ਼ ਬੜਾ ਕਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਪੁੱਤ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਇੱਕੇ ਥਾਲੀ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਨੂੰਹ ਦੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸੱਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਓ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਦਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਂਡੇ, ਪੁੱਤ ਨੇ ਵੀ ਭਾਂਡਾ ਮੂਧਾ ਮਾਰਿਆ, ਬਾਪੂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਂਡਾ ਮੂਧਾ ਮਾਰਿਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਂਡਾ ਮੂਧਾ ਮਾਰਿਆ, ਨੂੰਹ ਨੇ ਵੀ ਗਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮੂਧੇ ਆਪੇ ਹੀ ਵੱਜ ਜਾਣੇ। ਜੇ ਭਾਂਡੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨੇ, ਫਿਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਸਮਝਣਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਸ਼ਕ ਪੁਸ਼ਕ ਲਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ 5 ਕਕਾਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਾ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਛਪੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਦਾਜ ਦੇ ਬਦਲੇ। ਉਹ ਨਾ ਉਹਦੀ ਧੀ, ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਮਰੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਧੀ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੰਨੀ ਪਾ ਕੇ ਕੱਸਣ ਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਤੇਜ਼ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦਾ ਗਾਤਰਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਿ ਗਾਤਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਗਾਤਰਾ ਤਾਂ ਭੂਆ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦਾ ਗਾਤਰਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਤਾਂ ਗਾਤਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ 5 ਕਕਾਰ ਵੀ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਸੋਹਣਾ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਸਜਾਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਸਵੱਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸੁਨਾਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਸੋਹਣੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਚਮਕਦੇ ਹੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਚਮਕਦੇ ਆ, ਬਣੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇੱਧਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਮਾਲ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਇਹ, ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਗਹਿਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਟਰੰਕ ਟੇਚੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਗਹਿਣੇ ਆ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਮਲੰਮੇ ਦੀ ਝਾਲ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ।
ये थोड़ी कि बाहरों वेखण वाला हर पाया होया गहना सोने का ही हो सकता डुप्लीकेट होवे। जे वो संगत दे विच जां उस इकट्ठ दे विच कोई सुनारा होवे उन्हें कन्ना च पै दस देने कि ये तो डुप्लीकेट पाई फिरदे ते जे गुरु दी विचार नूं अपने हिरदे दे विच लैके सिख इदां तुरिया फिरूगा कोई भी होए बाहरों उन्हें कहना साडी सांझ विचारां दी आ है यार दस। तो साहब जी कहना दिसन खरे करूप जेड़े अपने हिरदे रूपी भांडे गुणा रूपी भांडे जिहदे विच गुण डिगना उन्होंने मुद्दे मारे हुए ने ओहो जे बंदियां दा अक्ष एक करूपता वाला नज़र आउंदा। दिसन खरे करूप एक कह जानन अज इहदी घाट है जिहदे करके अज साडे परिवारां दे विच समाई नहीं हो रही। ध्यान नाल सुनिया जी गुरु साहब जी कहंदे एक कह जानन कहया बुझण। घर दे विच बापू ने पुत नूं आख्या कि पुत आ गल इदां है पुत ने कहा ठीक है बापू जी आपां इदां ही कर लांगे। थोड़ी देर बाद पुत आया बापू कोल कि बापू एक मेरी मन ला कहंदा पुत तेरी नहीं मननी। जिथे एक बंदा चलाऊगा परिवार नहीं बस सकते। घर दे विच जे पत्नी ने पति नूं आख्या कई बार इदां दा हुंदा पति इदां दा हुंदा ओह कहंदा मेरी चलो जे तुहीं जदों पति घर च आउंदा सारे विचारे खूंजे खांजे लग जांदे। कईयां दा सुभाਅ दा पता हुंदा घर दे विच पत्नी कहंदी बच्चिआं नूं भी कहंदी कि पुत चुप कर जाओ इहदा तां सुभाਅ इहने बहाना लभना लड़न वास्ते कोई ना कोई खूंजे खांजे लग के सार लिओ। इहो जे बंदिआं नूं ओह पत्नी भी कहंदी कि ये बाहर ही कढिआ चंगा रहिंदा। अच्छा इहो जिहा बंदा जे मान लो समा पा के संसार छड्ड भी जाए तो कई बार परिवार चैन की सुख की नींद सौंदा कि चंगा होया। पर असीं तो इहो जे बन के आउणा है कि जिन्हां दे जाण तो बाद भी लोग उन्हां दे जीवन दीयां बातां पाउण। इदां दा चाहीदा है जीवन बंदे दा। बापू दा इदां दा हुंदा माँ दा हुंदा पुत दा इदां हुंदा कि लोग चेता करदे आम करके उदाहरण दिंदे जे असल दे विच जीवन जीना ना फलाने वर्गा जी के विखा। तो गुरु साहब जी कहंदे एक कह जानन जे तू किसी नूं कहना जानदा कहया बुझण। तो ये बंदे किहो जे गुरु साहब जी ते नर सुघाड़ सोहनी घाड़त वाले स्वरूप सोहने स्वरूप वाले जिन्हां ने कहा तो कहण तो बाद दूजे दी भी सुनन की समर्था रखे। एक ना नाद ना बेद ना गिय रस रस कस ना जानंत। कहंदे एक वो बंदे ने ना उन्होंने जिस तरह जोगी हुंदे सी पहलों नाद बारे एक ना नाद ना वेदां बारे। वेद दा इत्थे मतलब ज्ञान कोई गुरु की गल बारे पता। कई तुसीं वेख्या ना इदां जे चार सवाल गुरु ग्रंथ साहब जो करदे वो नहीं पता होना उदां जिन्नियां मर्जी गल्लां करा लो उदां आगे दियां बागे दियां उदां बंदा करन नूं तैयार। तो गुरु साहब जी इत्थे तुसीं कई बार वेखो घरां दे माहौल घर दे विच बैठिया बंदा घंटियां बद्धी एक दूजे दीयां गल्लां फलाना चंगा सी ढमाना माड़ा सी उहदा इदां हो गया इहदा इदां हो गया। तो जे बच्चा आखे मां चार गल्लां गुरु दियां भी सुना दे इहदे बारे पता नहीं इहदे बारे मैनूं कोई ज्ञान नहीं। फिर माँ तो आस करनी माँ ने पुत तो आस करनी कि पुत मेरा हीरा होवे पुत मेरा सोहना होवे पुत मेरा बीबा होवे। वो कित्थों बीबा होगा जिन्ने को तुहीं बीबे उन्ना को पुत बीबा बन गया। तो गुरु साहब जी कहते एक ना नाद ना बेद ना गिय रस ना किसी चीज़ का ज्ञान ना किसी बारे पता रस कस ना जानंत ना किसी बारे कोई जानकारी आ। तो इहो जे बंदे मालक जी फिर इस संसार दे विच एक हिसाब दे बोझ कहा जाता। कई बार आपां नहीं समझते कि कई इहो जे इंसान हुंदे जिहड़े परिवार ते भी बोझ बने हुंदे ने। तो मालक जी कहंदे इहो जे बंदे जिहड़े ने वो बोझ बनदे हुंदे ने। एक ना सिद्ध ना बुद्ध ना अकल सर ना एक किसी कोल सिद्धियां। आम करके जिहड़े सिद्ध जोगी हुंदे सी उन्हां कोल सिद्धियां रिद्धियां सिद्धियां बड़ियां हुंदियां सी। अज जिहड़े जोगी आउंदे ने उन्हां नूं पता कुछ नहीं हुंदा सप सुप विखा के लुट के लै जांदे इदां ही हुंदा। वो फूकां फाकां मरा के साडे कोल पैसे कढ़ा के लै जांदे आ। ते अज असीं उन्हां जोगियां कोलों फूकां वो सप्पां कोलों फूकां दीयां आवाज़ां सुणदियां ने ग्रंथी ਸਿੰਘਾਂ तो भी फूकां मराउणियां शुरू कर दियां। बच्चे नूं रोण दिया ग्रंथी कोलों चल के फूक मरा लियाओ। तो
तो जोगी नूं ड्यूटी ला दो कि तू महीने बाद सप ही इधर दी लैके चल जा कर, असीं फूकां फाकां मराउणियां। आम बंदा फूकां फाकां नहीं मराउंदा फिरदा, कदी किसे तो फूकां मराउंदा, कदी किसे तो फूकां मराउंदा फिरदा। हुण तो सगों बचो फूकां तो, करोना चलन दिया, हो सकदा अगले नूं करोना होवे, फूक मरा के लो सारा परिवार जब नूं अगले 14 दिन लई क्वारंटाइन कर दे, तो जे हस्पताल दे विच लै जाण तो किडनियां लभदियां ही नहीं, हुंदा एवें। हुण तो सगों इन्हां फूकां तो वध बचण दा, अज तो बंदा बाजार च निकलदा, अगलियां ने मास्क पवाते, हुण फूकां किवें दी मारोगे, पर बंदा फिर भी चोरी फूकां मरा के लिआउंदा जाके कि फूकां मारते। हुण तो अगलियां ने हुण तो टल जाओ, हुण तो अगलियां ने थां थां ते मास्क बाहर, अगले अपनी गड्डी लैके निकलो सारे शीशे बंद हो, शीशे बंद दे विच अगले जे मास्क ने पिछले दिन ही हापड़ जांदा बरेली लागे सानूं, असीं कहा गड्डी दे विच आ ते तिन्ने जने, तिन्हां ने मास्क नहीं पाया, अगलियां ने 1500 का चलान ठोक। अगले गड्डी च भी आंदे कि मूँह अपना ढक के रखो, ਇਹਦਾ मतलब कि किन्ने सुचेत होने वास्ते। हुण तो इन्हां तो वध बचन की लोड़ आ सगों। तो साहब जी कहते एक ना सिद्ध ना बुद्ध, ना उन्हां कोल कमाल दी बुद्धि हैगी आ। एक बंदे कोल विद्या होवे, बुद्धि चंगी होवे, आपां कहना फलाना बंदा तो बुद्धू ही आ। मालक जी कहते की आस की जाए इहो जिहे इंसान को जिन्हें अपना हिरदे रूपी भांडा ही मुद्दा मारिया होया। एक ना सिद्ध ना बुद्ध ना अकल सर, ना तो कमाल दा अकल हैगी इहदे कोल। अखर का अखर की है गुरु दे शब्द, गुरु दा ज्ञान, गुरु दी विचार। अखर का भेओ, आपां कहना फलाने बंदे दा नहीं भेद पाया जा सकता, पर गुरु सानू साडे जीवन का भेद दसदे ने कि तेरे जीवन का मनोरथ की यही भेद आ। जो मनोरथ पता लग गया, आपे भेद पता लग गया, जीवन का भेद की आ। अखर का भेओ ना लहंत, कहते वो बंदे गुरु दी विचार दा, गुरु दे ज्ञान दा भेद नहीं जानना चाहते, वो नहीं समझना चाहते कि मालक दी इस पावन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच मालक जी ने 1430 पन्ने, किन्ने 1430 पन्नियां दे विच सानू किड्डे कमाल दी विचारधारा दित्ती होगी। असीं तो एक पन्ना नहीं पढ़ पाए गुरु साहिब जी का, कि एक अंग पढ़ के भी असीं अपने जीवन नूं, इत्थे तो कहते मन समझावन कारण है कछूक पढ़ी है, थोड़ा बहुत ही पढ़ लेंदे तां भी गुरु साहिब जी कहते मन शायद तेरा टल जाता किसी पासों। ये तो तू कह सकदा सा, दावा कर सकदा हाँ जाके गुरु साहिब जी एक अंग ही पढ़ के आए, तो एक अंग नहीं। भाई जोध की बाणी जे सज्जन ठग वर्गे नूं जे एक शब्द, किहड़ा शब्द उज्जल कहां चिलकना, घुट मकालड़ी मस धोतियां झूठ ना उतरी, जे 100 धुआं तिस। अच्छा गुरु साहिब जी का एक शब्द आ, एक तां आख्या कि मन नूं समझाउण लई। दे कई बार बंदा कहता ना कि हुण इस बंदे की गल जिहड़ी मेरे खाने पै गई है, गुरु की कल्ली कल्ली गल ही साडे खाने, गुरु साहिब के कल्ली कल्ली विचार ही साडे खाने च पाउंदे आ। हो सकदा बंदे ने 10 गल्लां कीतियां होण, 10 दे विचों 2 ही खाने पाउण वालियां होण, विचों 8 ना मनण योग होण, पर गुरु दियां जे 10 ने तो 10 ही मनण योग ने। ਇਹਦਾ मतलब कि मन समझावन कारण है कछुक, थोड़ा बहुत गुरु साहब जी कहते पढ़ी है ज्ञान, थोड़ा बहुत ज्ञान पढ़ ला, फिर तेरी जिहड़ी अकल है वो बड़े कमाल दी हो जाऊगी। क्यों कमाल दी? लोग तेरे ते विश्वास करन लग पैणगे, तेरी यारी किहदे नाल पै जाऊगी? सच्चे सज्जण दे नाल। सज्जण सच्चा पातशाह, सिर शाहां दा जिस पास बैठिया सोही है। आपां कहने ना फलाना बंदा संगत बड़ी सोहनी हो गई आ, हुण बड़ा कमाल दा लगदा, माँ भी मान करदी मेरा बच्चा बड़ा, मेरा पुत्त बड़ा बीबा। गुरु साहब जी कहते हैं कि आ तैनूं मैं बीबा बनावां, आ तैनूं मैं कमाल दा बनावां। सज्जण सच्चा पातशाह। आ एक तो बंदा आम करके लोगों के कोई बादशाह, बादशाह का मतलब हुंदा बदी दा शाह, तो पातशाह का अर्थ है पत्त दा शाह। जिहड़ी साडी गुरु साहब साडी पत्त रखदा, आपां कहने ने अज पत्त रख लई मालक ने, इज्जत गुरु साडी इज्जत रखदा। सिर शाहां दा शाह, जिस पास बैठे गुरु साहब जी, तो गुरु कोल बहना किवें भला? इदां बैठिया गल बन जू इदां? गुरु साहब जी कहते इदां थोड़ी, इदां तो भावें सतगुर की प्रतीत ना आई आ, शब्द ना लागो। हुण सवाल ये भी पैदा हो ना, बहना किवें? बंदा कहंदा मैं तो दिन दे विच 8-8 घंटे, 4-4 घंटे, 10-10 घंटे बहना, पर गुरु साहब जी कहते बहन दे नाल तेरे अंदर भरोसा भी पक्का होना चाहिए।
सतगुर की प्रतीत ना या शब्द ना लागो भाओ उसनों सुख ना उपजै भावें 100 बार हाँ तू दिन में। पर मालिक जी कहते 100 बार आया प्रवान नहीं, तू दिन च एक बार आ, पर तेरा भरोसा पक्का होना चाहिए, तेरा विश्वास पक्का होना चाहिए कि जे बाबा बंदा सिंह बहादुर के सामने अपना छोटा जिहा पुत अजय, छोटा जिहा पुत सामने कहते इहदा कलेजे दे विचों इहदा दिल कढ़ के तेरे मूँह दे विच तुन्ना, नहीं तो गुरु नूं छड्ड दे, नहीं तो आह काम हुणे हो जाना। कहंदा कर दो, कोई परवाह नहीं। इहदा मतलब भरोसा गुरु ते किड्डा वड्डा, पुत दी भी परवाह नहीं कीती। किड्डा साडा भरोसा जिहड़ा बलवान होना चाहिए। तां साहब जी कहंदे इक ना सिद्ध ना बुद्ध ना अकल सर, अखर का भियो नाल हंत, नानक इत्थे गुरु साहब संबोधन हो के कहंदे ने नानक ते नर असल खर। अच्छा गुरु खर दा मतलब हुंदा खोता। अच्छा जे मैं उदां किसी नूं खोता कह तो बंदा गल पैंदा। गुरु साहब जी कहते ने कि जेड़ा इंसान इत्थे खोता शब्द वरत्या हुंदा तां भी थोड़ी बहुत रियायत हो जाती, पर इत्थे गुरु साहब असल नाल वरतदे ने कि असली खोता। कई बार हो सकता गुरु साहब सोचते हैं कई बार खोते भी विच सियाणे हो सकते आ, की पता एक खोता सारे घुमियार का परिवार पालदा होवे, उन्होंने तो सियाणा कहेगा ना। मान लो इट्टां दे भट्ठे ते लाया वो सारा परिवार खोते तो चलदा होवे, तो जेड़े असली खोते गुरु साहब जी ने इत्थे वरत्या, सियाणे खोते नहीं। मालिक जी कहंदे वो असली खोते ने जिन्हां नूं वाकई दे विच खोता कहा जा सकता। नानक ते नारे असल खर, जे बिन गुण गर्भ करंत। कहंदे गुण नहीं कोई हैगा अंदर। गुरु गुण किहड़े ने? दया, धर्म, धीरज, सत, संतोख। मालिक जी कहते इन्हां चों कोई गुण, ये गुण आने कित्थों ने? गुरु की विचार तो पैदा होने ने। जे बाहरों कोई चीज़ आपां नूं मान लो कि जे बाजार दे परचून की दुकान तो परचून मिलना, खाद की दुकान तो खाद मिलनी, पेट्रोल पंप तो पेट्रोल मिलना, तो ये गुण थोड़ी कि इन्हां वास्ते भी कोई बाहर बाजार च दुकान होगी। इदां थोड़ी हुंदा कि बंदा घर दे विचों पुत्त नूं आखे कि पुत्त 100 रुपया लै जा, जाके संतोख खरीद के लै आ, मैनूं संतोख आ जाए। पुत्त ने कहना बापू भावें पैली वेच दे हाँ सारी, जे संतोख आना तो तेनों अंदरों ही मिलना। ये जड़ियाँ बाहर ही बंदा बाकी सारा कुछ जिथे रेडीमेड चाहते हैं ना कि रेडीमेड बाकी मिल जाना, उत्थे गुणां नूं भी रेडीमेड तौर के उत्ते कि गुण भी रेडीमेड ही मिल जाण किते। पर गुरु साहब जी कहते हैं कि गुणां नूं ग्रहण करने वास्ते, गुणां नूं प्राप्त करने वास्ते तेनों गुरु की शरण दे विच आउणा पैना है। तो यदा मतलब मालिक जी इत्थे सानू नानक ते नर। अच्छा आपां ये अखवाउणा चाहांगे कि सानू गुरु साहब जी गधे नाल तरजीह देण, कोई नहीं बंदा चाहुंदा। पर मालिक जी कहंदे हुण सुणिओ, गुरु साहब जी कहंदे जेड़ा अपने गुरु नूं छड्ड के किते होर जांदा है। भाई गुरदास जी तो पुछदे हैं आपां। भाई गुरदास जी कहते जैसे बछरा बिछर परे आन, गाए थन दुग्ध ना पान करे, मारत है लात के। कहते है किसान वीरो तुसीं किसानी करते जे, तुहाडियां खुरलियां दे उत्ते जानवर बजे हुए ने। वेखो भाई गुरदास जी ने किड्डे कमाल दी गल कह के सानू समझाई। कहते जानवरां नूं तुसीं खुरलियां ते बन्निया, माँ जदों घर दे विचों भैण ने उस गां नूं चोण जाना है तो वही वच्छी वच्छा जिहड़ा किले ते बज्झा है उन्होंने छड्डदी आ भैण। खुरली दे उत्ते होर भी जानवर बज्जे ने, 2 गावां 3 होर बज्जियां ने। वो वच्छा जदों छुटदा सीधा अपनी माँ के थल्ले जाके पैंदा। अच्छा जे वो वच्छा मान लो अपनी माँ नूं छड्ड के दूसरी गां के थल्ले जाके पै जाए, फिर दूजी गां ने खिच के लत्त मारनी मूँह ते, जबेड़ा हिला के रख देना। बंदे ते भी अज हिलिया तो पिया पर मनन नूं तैयार नहीं हैगा। ये पता उदों लगदा, वो कई बार बंदे नूं बीमारी हुंदी आ, वो तो जदों डॉक्टर किते चैक करते हैं ना, किते
खून चैक करते, पैथोलॉजी लिजा के अल्ट्रासाउंड करते, फिर पता लगता ढिड च पत्थरी, बाहरों तो चंगा भला लगता है। इदा गुरु साहब जी कहते हैं कि भाई गुरदास जी कहते हैं कि जे वो बच्चा जाके दूजी माँ के थले, दूजी किसी गां के थले पवे, माँ को छड्ड के अगों लत्त मिली, ना उन्हें दुध पीण दिता, ना अगों प्रेम ही किया। मालक जी भाई गुरदास जी कहते ऐ सिखा, जे गुरु नूं छड्ड के तू किसे मड़ी दे उत्ते, ये दसा कई बार इदा आप लंबे समय हुण इन्ना चिर आप कथा की, विचार की बाणी की, ये असर तां पैना जिन्हों मन के जावांगे। अज जाके इदा भाई मंझ आया सी गुरु साहब जी के कोल, साखी सानू पता है ना भाई मंझ दी। भाई मंझ गुरु अर्जन देव पातशाह जी के कोल आया, तो जदों वेख्या गुरु अर्जन देव पातशाह जी के विचार, गुरु साहब जी के गुरु घर की जिहड़ी सिੱਖੀ आ, उत्थे जाके एक दूजे नूं गल लाउण दी, एक थां ते बह के प्रशादा छकन दी, एक थां ते सरोवर दे विच इशनान करन दी, कोई वितकरा नहीं हैगा। इन्ना प्रभावित होया गुरु अर्जन देव पातशाह जी के कोल जाके कहंदा मालक जी सिੱਖੀ बख्शो। गुरु साहब जी कहंदे सिੱਖੀ तो पहलों ही चुकी फिरदा तूं, जे सिੱਖੀ लैनी तो पहली सिੱਖੀ छड्डनी पैनी। जे ये विचारां नूं अपने जीवन का आधार बनाउणा तो जिहड़े पिछां पुराने पिछां आपां चुक्की फिरदे वो छड्डने पैणे ने। जिहड़ा बंदा मड़ी ते जाके मत्था टेक के अपने आप नूं माण महसूस करदा ही अज आके गुरु साहब जी मैं घरे पोथियां लै जाणियां, अज तो मैं पोथी नूं मत्था टेकिया करूँ, अज तो मैं पोथी अगे मत्था टेकिया करूँ, पोथी अगे नक रगड़िया करूँ, पोथी नूं पढ़ के अपने जीवन नूं सोहना बनाउणा। मैं वेखो मैं कई बार सोचता हुन्ना कि असीं तो बोलते हैं, मान लो इदा स्टेज तो तुहाडे इत्थे बोल के चले, हो सकता मैं इदा बोलता मड़ियां बारे, धागे तबीतां बारे, तो जे कुछ होवे तो सब तो पहलों तो बोलण वाले नूं दंदल पैनी चाहिए ना। तुसीं इत्थों कहना ही भाई गगनदीप सिंह आए, फिर इदा चर्चा होनी। उन्होंने बोलिया बाबे बारे, बोलिया साडे दीवे बारे, बोलिया साडी मड़ी बारे, पै गई दंदल, चारां बंदियां ने चुक के लाया। अच्छा जे पै भी जाऊगी ना प्रवाह मैं फिर नहीं कर, जदों खुलूगी बोलांगे फिर एवें। मान लो कि अद्धे घंटे बाद 15 मिनटां बाद दंदल टुट गई, मैं फिर एवें बोलूँ। जिन्ना चिर तक साह है तो इदां ही आवाज़ निकलती रहूगी। ये विचार नहीं बदलू कि मैं बात तुम सोचो हुण डर जो, हुण थोड़ी बोलना, फिर बहा के वेख लियो, फिर इदां ही बोलना। जे गुरु साहब जे ये सिखां दा किरदार सी, वो कहिंदे भावें तुसीं साडा सारा परिवार मन्नू साडी दातरी, असीं मन्नू दे ज्यों ज्यों मन्नू वढदा, वो कहिंदे तू एक वड्डिओ सानू खत्म करन ते ला, असीं दूण सवाए होए। इहदा मतलब डोलदे थोड़ी सी अगले, जिहो जिहा मर्जी बच्चों नूं छोटे छोटे टुकड़े करा के झोलियां च पाले, बच्चों के हाथ नेजियां विच इदां बच्चे तां सुट्टदे, नेजियां च परोंदे, माँ के सामने परों दिंदे अगले। पर माँ कहंदी मालक जी यही अरदास करदी, मालक जी सिੱਖੀ केसां स्वासां संग निभ जाओ, तो निभा के विखाई। तो अज दा वेख लो, अज हालात, अज झात मार के वेखो। वो ना जिन्ने लाई गली उहदे नाल उठ, बजुर्ग कहावत पाउंदे ने, जिन्ने गली लाई, जिन्ने माड़ा जा के आख्या उत्थों सुख मिलदा। बाबा इहो जिहा मंत्र मारदा सारे ही दुख फुर, बंदा अपने दुख बुझाउण तुरिया फिरदा। इन्ना नहीं पता कि तेरे कर्मां करके ही दुख आ, तेरे कम्मां करके दुखी बंदिया। तो साहब जी इत्थे सानू समझाउंदे, नानक ये आखिरी पंक्ति शब्द दी गुरु नानक देव पातशाह, नानक ते नर वो बंदे असल खर जे बिन गुण गर्भ करंत, जेड़े बिना गुणा तो, जेड़े बिना गुरु की सिक्ख्या तो, जेड़े बिना बाणी पढ़न तो, जेड़े गुरु की बाणी तो आप सखने रह के अपने जीवन दे विच ये मान करी बैठे ने, मैं कोठी बना ली, मैं 10 किले जमीन बना ली, मैं 15 किले बना ले, मैं 4 प्लाट खरीद ले, मैं दुकानां पातियां। मालक जी कहंदे ये तेरे धर्म की दुनिया दे विच गुरु की निगाह दे विच किसे, इतां ते औरंगजेब ने बड़ा वड्डा राज साम्राज्य खड़ा किया सी, पर सच के बदले इधरों गुरु साहब जी ने प्रशादी हाथी भी छड्डिया, आनंदपुर का किला भी छड्डिया, ये सुख दी घोड़े काठियां सारा कुछ छड्डता, ते बदले दे विच सच अपने जीवन दे विच
प्यारिओ इत्थों तक कि सामने बच्चों दीयां लाशां पईयां ने लागों दी निकल के, उस बापू दे असीं वारस हां अपने आप नूं। तो मालक जी कहते हैं नानक ते नारे असल खर। हुण जरूर एक बारी जाके ध्यान मार के जदों किसी पासे तुरिया करो ना, अपने आप को जां तो गधा मान लिया करो कि मैं गधा। ये कौन कहता? मैं थोड़ी कहना, गुरु साहब की बाणी है, सुन के चले जे ना। जदों तुसीं गुरु नूं छड्ड के किसी होर पासे तुरोगे, उदण अपने आप नूं गुरु की निगाह दे विच तुहानूं एक गल ते कबूल करनी पैनी कि मालक की निगाह दे विच असीं कौन आ? गधे। तो बंदा कहता मैं सियाणा, पर गुरु साहब कहते तू गधा है। नानक ते नर असल खर, जे बिन गुण गर्भ करंत। कहते जे बिना गुणा तो तू मान खणेगा, बिना गुणा तो तू हंकार करी बैठा है, तेरा जिहड़ा इस संसार दे विच आया की होएगा? लोक गयो पर लोक सारा कुछ गवा के चले। तो गुरु साहब जी कृपा करन। वेखो मालक जी ने आपां एक शब्द की विचार की, किड्डे कमाल दी गुरु साहब जी ने विचार जिहड़ी सानू शब्द दे राहीं समझाउण दा यतन कीता है। तो मैं सोचदा जे इदां रोज़ गुरुद्वारिਆਂ 'ਚ कथा होया करे, एक टाइम होवे तुसीं कदी शहरां 'ਚ जा के वेखो, आपां कहने इन्हां कोल पता नहीं कित्थों इन्नी शांति हुंदी, शहरां 'ਚ उन्हां दे घरां 'ਚ इन्नियां लड़ाइयां नहीं हैगियां। शहरां दे विच जा के वेखो, अगले सवेरे दुकान तो जाण तो पहिलां दीवान ऐन बिल्कुल फुल हुंदा, अगले सवेरे घरों तैयार हो के, अगले पता इस टाइम के उत्ते सब ने हाज़री भरनी, उत्थे कथा कीर्तन होना ही होना। तो साडे इत्थे आउने आ असीं जां ते संगरांद ते जां किते महीने मस्सिया पुन्निया आ गए, ये 2-3 दिन जिहड़े असीं पक्के कीते आ कि मालक जी आ जिहड़ा फॉर्मैलिटी इन्नी करांगे आवांगे। पर सिख दा जीवन कितना झक्खड़ झांगी मींह बरसै भी गुर देखण। सिख दा तो जीवन इदां दा होना चाहिए। मालक जी मींह वरे, नेरी वरे, अग वरे, फिर भी मैं तेरी हजूरी दे विच शरण दे विच आके अमृत रूपी रस, अमृत रूपी शब्द नूं रोज़ अपने ना कन्नां दे नाल, स्रोतां दे नाल सुणन दा यतन करांगा। तो गुरु साहब जी कृपा करन। प्यारिओ, कोई भी जदों आपां समागम मनाउने आ, उहदा मेन मकसद ये हुंदा कि असीं गुरु साहब जी की विचारधारा दे नाल जुड़ीए, गुरु साहब जी के पावन सिद्धांत दे नाल जुड़ीए। इस करके गुरु साहब जी ने सानू बड़ा सोहना खजाना, गुरु साहब जी कहते प्यो दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरा मन निधाना। निधाना मतलब बड़ा कैंड 9 निधियां 18 सिद्धियां, बड़ा जिहड़ा बंदा पाओ फलाना बंदा बड़ा अमीर आ। गुरु साहब कहते मेरी निगाह च तू उदों अमीर होना जदों तेरे कोल ये प्यो दादे दा तू जिहड़ा खजाना डिठा मतलब वेख्या। तो वेखना मतलब किदां? उन्होंने पढ़ना पैना, समझना पैना, अपनी सुरत दे विच इस ज्ञान नूं धारण करना पैना, तां तेरा जीवन कच तो सोने वर्गा बन सके। कच्चों कंचन पया शब्द गुर सरवणे सुनियो। इदां दा जीवन साडा बन सके। भैणां नूं भी बेनती आ, साडे वीरां नूं भी बेनती आ कि अपने जीवन दे विच जिथे 5 ककार आपां 5 प्यारिਆਂ ਦੇ सन्मुख हो के धारण करते हैं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ कई बार इदां ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ने, मैं ना किसी दिन एक दिन किते बैठा सा, मैनूं पुछदा कि तुसीं किन्नी वार अमृत छकिਆ। मैं कहा मैं तो पहली वार ही छकिਆ बचपन तो, उस तो बाद लोड़ ही नहीं पई, मैं किहड़ा उत्थे गलासियां खड़काउणीਆਂ सी। कहंदा फिर ते तू थोड़ी साडा साथ कर सकदा। मैं क्यों? कहंदा साडी ते 8-10 वार ते तो गांह वां। इदां दीयां विचारां। इस करके अपने जीवन दे विच रहिंदियां प्यारिओ गुरु वाले बनो। तो मैं वीरां नूं बेनती करांगा प्यारिओ गुस्सा ना करिओ। वेखो एक सेवा भैणां भी ये चीज़ आखिरी बेनती करके आपां समाप्ति कर देनी। हुण पता गर्मी वैसे भी बहुत आ, कमेटी जो इन्ने वड्डे आ सारा कुछ करते बेचारे इकट्ठा करके तुहाडे कोलों गराहियां करके जिम्मेदारियां हुंदियां ने, सारा समागम करना बड़ी वड्डी, घर दे विच छोटा जिहा समागम करना होवे ते काफ़ी जिम्मेदारियां हुंदियां ने। इत्थे एक प्रण करके जाओ कि एक सेवा असीं जरूर करनी रोज़ सारिਆਂ ने। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂ ना गुरुद्वारे ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ सेवा करनी, ਆਪਾਂ इकट्ठे करके लाने, चलो वीरो गुरुद्वारे सेवा करनी जाके।
एक सेवा है आपां सारिਆਂ ने करनी। अज प्रण करके जाओ कि गुरु साहब असी तेरे पंथ की सेवा करनी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तेरे पंथ की सेवा करनी है। पंथ की सेवा किवें करनी है कि जेड़े अपने केस ने ना, ये गुरु के पंथ की सेवा है। जदों एक माँ अपने छोटे बच्चे के केसां नूं वाहुंदी है ना, अद्धा घंटा पौना वो गुरु के पंथ की सेवा कर रही है। ये विचों छोटे साहिबजादे नज़र आउण। जदों एक साडा वीर अपना दाड़ा सवारदा है, सोहनी दस्तार बन्नदा है, तो बाहरों जाके उन्होंने खिताब मिलता है सरदार का। उदां ही कुछ मुच हो के चल जी, कोई बंदा थोड़ी सरदार कहंदा। इहदा मतलब असीं गुरु के पंथ की सेवा की। जिस तरह आपां इत्थे सेवा की तो ना सानूं मिलिया सेवादार कि फलाना बंदा गुरुद्वारे इत्थे ग्रंथी सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब की सेवा की, उन्होंने मिलिया ग्रंथी। जदों तू गुरु के इस पंथ की पंथ आ, जदों यदि असी सेवा करांगे ना, अपने केसां नूं इदां सवारांगे कि गुरु साहब ने दिते ने। भाई कदी पीर बुद्धू शाह तो पुछ के वेखो, जदों जाके नसीरां अपनी पत्नी नूं कहा ना, पत्नी ने पूछा नसीरां ने कि गुरु साहब तो की दात लैके, जिद्दां इत्थों जाने आपां कहने की प्रशाद लिआंदा गुरुद्वारा। माँ सवेरे मत्था टेक के जांदी, पुत्त मंगदा प्रशाद, माँ की लिआई है। पत्नी नसीरा ने कहा पीर बुद्धू शाह नूं कि गुरु साहब तो दात किहड़ी लैके आए। तो पीर बुद्धू शाह ने ना कंघे समेत केस गुरु साहब के झोली च पाते माता नसीरां दे। जदों नसीरां दी झोली दे विच पाए तो नसीरां कहंदी इहदे बदले दे विच कीमत की दे के आए जी। कहंदे 2 पुत्त। भंगाणी दी युद्ध दे विच 2 पुत्त शहीद करा के आए। तो उत्थे नसीरां ने आख्या वेखो माँ का हिरदा बड़ा कोमल हुंदा है, पर माँ कहंदी है, नसीरां कहंदी है कि एड्डी वड्डी दात ते एड्डी छोटी कीमत। इस दात वास्ते ते परिवारां दे परिवार गुरु दे लेखे लग जाते, फिर जाके दात झोली च पैंदी है। ਇਹਦਾ मतलब कि ये दात जिहड़ी है गुरु साहब जी ने सारा परिवार साडी झोली विच पा के ते ये दात साडे साडे तो आस कीती सी। जदों आपां पढ़दे ना, इन पुत्रन के सीस पर वार दिए प्यारो सजाया करो। ऐ दाड़े नूं सगों तुहानूं माण चाहिदा, जदों सवेरे उठ के नूं कंघा करो, ऐन केसां नूं तेल लाओ, फिर शीशे अगे खड़ के सोहनी दस्तार सजाओ। ये गुरु नूं सवाल कीता सी गुरु गोबिंद सिंह नूं। तुसीं आम करके स्टेजां तो सुनिया होएगा कि गुरु साहब जी नूं किसी ने आख्या कि मालक जी तुहाडे असीं जे शरीर रूप च दर्शन करने होण तां। गुरु साहब कहंदे 5 चों कर लिओ। किसी ने कहा 5 ना होण 4, किसी ने कहा 4 एक भी ना होवे। तो गुरु साहब कहंदे ऐन तैयार बर तैयार हो के 5 ककार सजा के जदों तू शीशे सामने वेखेंगा ना, उस मैं नज़र आऊँगा। क्या सी ना गुरु ने, वो भैन भी हो सकती है, वो वीर भी हो सकता। गुरु सारिਆਂ चों दर्शन, गुरु का किसी ना वितकरा थोड़ी, वो सारिਆਂ नूं गल नाल लाउंदा है। इस करके जदों सिर ते दस्तारा साडी भैन एक बैठी है ना, वेखो उन्हें दस्तार सजाई, किड्डे सोहणे लगदे ने। इदां जदों इदां दस्तारां सजाइयां होण, घरां दे विच आदत पाया करो, घरां दे विच आदत पाया करो कि असीं इस चीज़ नूं सांभीए। अज घाट है इस चीज़ की। जदों साडियां भैणां ने सिर ते दस्तार सजाई होगी, आपे गुरेज करना कि हुण मैं भरवट्टे नहीं मनाउणे। जदों माँ जाके भरवट्टे मनाउंदी है, फिर जाके बच्चियां ने भी उही काम करना जो आप करदे। खूह आ, जिद्दां दी आवाज़ मारोगे उदां दा आउणा विचों आवाज़। इस करके इन्हां चीज़ां नूं समझीए प्यारिओ, ते अपने जिहड़े विहड़े नूं, गुरमत दे विहड़े नूं सोहना बनाइए। बड़ी वड्डी जिम्मेदारी सारिਆਂ दी, कल्ले कल्ले दी, प्रचारकां दी नहीं। कल्ली कई बार आपां कहंदे प्रचारकां दा काम है, कल्ला कल्ला सिख प्रचारक। तो मैं वीरां नूं बेनती करांगा इत्थों प्रण करके जाओ। पिछले दिन ही मैं शायद हुणे गल भी कीती सी, इत्थे ना किते क्लास लाई असीं, भाई साहब जरनैल सिंह नाल ही हुंदे ने, उत्थे क्लास लाई। तो क्लास का मैं पहला दिन ला के आया, तो घरे एक बच्चा गया, वो इदा 17-18 साल उम्र होनी है। घरे जाके कहंदा कि तुसीं सानूं सिख कहिंदे जे असीं सिख हाँ, साडा तो हिंदुआं वाला हाल बनाया। उन्हें पहलों मैं नहीं उन्होंने आख्या कि तू तबीत ला अपने गल चो, जां रख ला। घरे जाके रख खोल के वह मारी तबीत, तो सारे धागे धुगे ला के उन्हें परे मारे। कहंदे ये सिੱਖੀ है। तो बाद जिदन मैनू दूसरे दिन मैनू ग्रंथी सिंह कहंदा कि जाके इन्हें घर च सारा कुछ ला के पासे मारे। ਇਹਦਾ मतलब विचार का असर पैंदा है। तो इत्थे जरूर कबूल के आ जिहड़े कमेटी वाले जी वीरां ने इन्ना उदम किया ना, इन्हां दा कीता होया सारा ही सार्थक हो जाएगा। फिर इन्हां नूं गुरु साहब की जिहड़ी बख्शिश प्राप्त होनी है। फिर इन्हां ते गुरु ने मान करना कि जे इन्हां ने ये उदम उपराला किया है, इस दीवान दे विचों कीती हुई साध संगत दे विचों साडा एक वीर भी अपना जीवन बदल के चला गया। तो आ सारा किया होया समागम जिहड़ा है
वो वाकई दे विच गुरु के दर ते प्रवान हो जाएगा। गुरु साहब जी कृपा करन, मेहरमत करन, साडे ते जिहड़ी ये दात है शब्द की वो साडी झोली दे विच पै जावे। बेनती करदे हां अनेक प्रकार दीयां भुल्लां गलतियां दी खिमा आप संगतां बख्शण योग जे बख्शियो जे। गुरु ग्रंथ साहिब जी बख्शणहार ने बख्शना जी। हुण एक बार कहण ते दोवें हथ जोड़ गज के बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की